ہماری ترکی اور ایران کی سیاحت تقریباً 1 مہینے سے کچھ دن اوپر پر محیط تھی. یا میں قسط نمبر 40 پر پہنچ چکا ہوں اور سفر بڑا طویل ہے، اس لیے میں نے مختصر یہ سوچا ہے کہ آپ کو اس کی صرف چیدہ مختصر واقعات سناؤں، ورنہ ہم اسی داستان اور اسی سفر کے مرحلے میں ہی اپنا سارا وقت گنوا دیں گے. اس سفر کے دوران ہمیں بہت اچھے لوگ بھی ملے اور کچھ برے لوگ بھی ملے. تو اچھے لوگوں کا ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو میں آپ کو کچھ برے لوگوں کا ذکر بھی سناتا ہوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی لوگ فراڈیے، چکر باز، دھوکے باز اور لٹیرے ہوتے ہیں. لیکن دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں سفر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس قسم کے لوگ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت، ہر معاشرے، ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. اور مجھے کوئی بھی ملک ایسا یاد نہیں جہاں میرے ساتھ چکر بازی، فراڈ، دھوکہ، فریب کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو یا مجھے نہ لوٹا گیا ہو. ہم اگرچہ بعد میں بہت تجربہ کار سیاح بن گئے تھے، لیکن جو آنکھوں میں مٹی دھول جھونکنے کے ماہر ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں میں بھی مٹی دھول جھونک دیتے تھے. اس سلسلے میں ایک پہلا واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ جب ہم ایران سے ترکی بائی روڈ کراس کرنے لگے تو ہم نے بارڈر پر لیرے کیش کرانے تھے. ہم نے ایرانی سائیڈ پر ایک جو منی ایکسچینجر لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں عام طور ہاتھوں میں نوٹ لیے ہوئے، وہ کوئی دکان باضابطہ نہیں تھی، تو وہ لڑکے پھر رہے تھے. تو ایک لڑکے نے ہمیں جو ہمارے پاس تمان بچے تھے ان کے بدلے میں اور کچھ پاکستانی کرنسی کے بدلے میں ہمیں ترک لیرے دیے. ایران میں ہم نے $210 اور 2410 روپے کے بدلے میں 45,800 تمن خریدے، جن میں سے 33,800 تمن خرچ ہوئے. اور اب جب ہم ایران سے ترکی روانہ ہونے لگے تو میرے پاس تقریباً $1,600 اور 12,000 تمن کے علاوہ 3,000 سے زائد پاکستانی کرنسی بھی بچی ہوئی تھی. گویا 18 دن میں ایران میں ہم نے تقریباً 6800 روپے خرچ کیے، جو اوسطاً 400 روپے فی یوم سے بھی کم تھے. اس کی کسر آگے ترکی میں جا کر نکلنا تھی، جس کا آغاز سرحد کراس کرتے ہی ہو گیا. ایران کے بارڈر پر ہم نے $1 کے بدلے میں 1100 لیرے اور $1 کے بدلے میں 330 لیرے اور 1 تمن کے بدلے 70 لیرے پر کرنسی ترک کرنسی خرید لی. اور اب میرے پاس 5,11,000 ترک کرنسی تھی، لیرے. میں لاکھ پتی بن چکا تھا اور میرے نزدیک 5 لاکھ لیرے کافی رقم تھی. مگر آگے جا کر ترک لٹیروں سے پالا پڑا تو دن میں تارے نظر آ گئے. ترک ایران بارڈر ایک پہاڑی پر واقع ہے. یہ کوہ آرارات کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے. کوہ آرارات کی برف پوش چوٹی، جس پر معتبر روایات کے مطابق طوفان نوح کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے قیام کیا تھا. اگر آپ فوٹو میں دیکھیں تو اس کشتی کے آثار اب بھی
कुछ ना कुछ नज़र आते हैं। ये कश्ती इलाके में दूर दूर से नज़र आती है और मंज़र में बेहद दिलकशी पैदा करती है। इस चोटी पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है और इसी सबब से ये इलाका ख़ासा ठंडा है। बाजुर्गान के कस्बे से सरहद तक 1 किलोमीटर चढ़ाई है। ये फ़ासला हमने टैक्सी पर तय किया। सबसे पहले पुलिस क्लियरेंस का मरहला आया। पहले ईरानी बॉर्डर से क्रॉस कस्टम और इमिग्रेशन, फिर तुर्क सफारत खाने वालों की, तुर्क बॉर्डर वालों की कस्टम क्लियरेंस और सामान की चेकिंग। 2.5 घंटे ईरानियों ने खा लिए, 2.5 घंटे तुर्कों ने खा लिए। जब हम सब कुछ क्लियर करा के रात के 12 बजे तुर्क एम्बेसी से बाहर, तुर्क बॉर्डर से बाहर निकले तो उस वक्त सर्दी अपने अरूज पर थी और आगे ना कोई वैगन, ना कोई बस, ना कोई और सिलसिला जिससे हम उस बॉर्डर से किसी नज़दीकी शहर चले जाते और वहाँ किसी होटल पर क़याम करते। तुर्क बॉर्डर पर भी कोई होटल नहीं था, कोई सराय नहीं थी, कोई खाने पीने की दुकान नहीं थी। गर्ज़ सर्दी में बहुत बुरा हाल था सर्दी की वजह से। और जब हम तुर्क बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकले तो वहाँ हमें कोई 10-12 पाकिस्तानियों का एक गिरोह मिला जो तुर्की के रास्ते। उन दिनों ईरान और तुर्की की बॉर्डर बंद, उन दोनों ईरान और इराक़ का बॉर्डर बंद था जंग की वजह से। तो जिन लोगों ने ज़ियारत के लिए इराक़ जाना होता था, जिन पाकिस्तानियों ने या ईरानियों ने, तो वो पहले तुर्की जाते थे और तुर्की के शहर बायज़ीद से वो मोड़ लेकर पहले शाम जाते और फिर वहाँ से इराक़ जाते। तो हमें बॉर्डर क्रॉस करते ही एक पाकिस्तानी ग्रुप ने घेर लिया और उन्होंने हमसे कहा कि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तुर्क हुकाम सिर्फ उस शख्स को तुर्की में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं जिसके पास $500 या उसके मसावी डॉलरों के ट्रैवलर्स चेक हों। पाकिस्तानी गिरोह के लीडर तुफ़ैल ने मुझे बताया कि उनका एक साथी पीछे तबरेज़ में रह गया है जिसके पास उनकी कुछ करेंसी और डॉलर हैं। अब इन 7 अफराद को तुर्की में दाखिले के लिए तुर्क बॉर्डर पुलिस को $3500 दिखाने थे जबकि उनके पास $1200 कम थे। तुफ़ैल ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनको $1200 उधार दे दूं जो वो बॉर्डर क्रॉस करके मुझे वापस कर देंगे। यानी मेरे पास कुल $1600 थे। उसने कहा 1200 मुझे दे दो तो हम बॉर्डर क्रॉस करके वो तुम्हें दे देंगे। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं $1200 तुम्हें दे दूं, तुम तो बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, परली तरफ चले जाओगे, मैं इधर ईरान में लटका रह जाऊंगा। छोड़ो मियाँ बिल्ली, छोड़ो मियाँ बिल्ली, छोड़ो बिल्ली, क्या वो है मुहावरा है, मियाँ चूहा लडोरा ही भला, बख्शो भी बिल्ली चूहा लडोरा ही भला। मैंने उसे कहा बाबा तुम जाओ, हम तुम्हें $1200 नहीं दे सकते। जब उसने देखा कि मैं किसी सूरत पर उसके वरगलाने में नहीं आ रहा तो उसने डॉलरों की रकम करके 500 कर दी कि चलो हम 5 अफराद किसी तरह बॉर्डर क्रॉस कर लें, बाकी 2 को किसी तरह वापस आकर फिर वही डॉलर दिखा के बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। मगर मैंने तुफ़ैल की कोई तरह न चलने दी।
इस तरह मैं पाकिस्तानी फराडियों से तो बच निकला, मगर तुर्की में दाखिल होते ही तुर्क फराडियों की फरेबकारी का शिकार हो गया। उन्होंने बड़ी अय्यारी से मुझे अपने चुंगल में फंसा लिया और तुर्क बॉर्डर से निकलते ही तुर्क जो है ऑफिसर ने कहा कि अब तुम्हें रात बॉर्डर पर बसर करना पड़ेगी क्योंकि इस वक्त कोई सवारी ना मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि आरा रात की बर्फ़पोश चोटी के साए में खुले आसमान तले बेपनाह सर्दी में हम रात कैसे गुजारेंगे। हमारे पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। मैंने एक हाफ स्लीव्स शर्ट पहनी हुई थी और एक पैंट थी, और जूते के नाम पर मेरे पाँव में एक सॉफ्टी थी, सैंडल भी नहीं थी। ईरानी बॉर्डर की तरफ तो कोई कस्बा, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह भी थे, मगर तुर्की बॉर्डर क्रॉस करते ही वीरानी थी या सिर्फ तुर्क सरहदी अमले के क्वार्टर थे। बाहर वाकई कोई सवारी न थी, अलबत्ता एक बस खड़ी थी जिसको 30 के लगभग ईरानियों ने घेरा हुआ था। हमारे साथ इन ईरानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया था और ये ज़ायरीन का काफ़िला था जो दो बायजीद से होकर शाम जा रहा था। जब हम ईरानी बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की के कस्टम हॉल में पहुँचे तो वहाँ यह काफ़िला सामान की चेकिंग के लिए अटका हुआ था। इस काफ़िले के एक पढ़े लिखे शख्स अहमद अली कानी से मेरी अंग्रेज़ी में घंटा 2 घंटे खूब गपशप होती रही और हमने आपस में एड्रेसेस का तबादला भी किया। मैंने बस के पास खड़े अहमद से रब्ता किया तो उसने बताया कि सरहद से 2 बायजीद तक 35 किलोमीटर तक नहायत ख़तरनाक वीरान इलाका है, जहां कुर्द बागी गैर मुल्कियों की बसों को अगवा करके तुर्क हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, तावान वसूल करते हैं और अपने गिरफ़्तार शुदा साथियों को यरगवालियों के बदले छुड़ाते हैं। लिहाजा तुर्क सरहदी पुलिस ने पाबंदी लगाई हुई है कि सूरज गरूब होने के बाद सुबह तक इस इलाके से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। यानी ये वही तालिबान वाला मामला है कि कुर्द बागी बसों को पकड़कर, जिस तरह तालिबान पाकिस्तान से आने वाली बसों को पकड़ लेते थे और भत्ते वसूल किया करते थे, तो वहाँ ये काम कुर्द बागियों ने किया हुआ था। लिहाजा बस को बॉर्डर पर रोक लिया गया कि अब सुबह होगी और सुबह मिलिट्री पुलिस आएगी, तो उस वक्त जो काफ़िला बनेगा उस काफ़िले को लेकर मिलिट्री पुलिस रवाना होगी। बस जनाब, फिर हम सुबह तक वहीं सर्दी में सुकड़ते रहे। 1-2 बार मैंने बस से नीचे उतरकर वर्जिश करने की कोशिश की ताकि मेरे जिस्म में कोई हिद्दत पैदा हो, तो वो ज़बरदस्ती मुझे आके अंदर वापस भेज देते कि यहाँ बाहर खड़ा होना भी जुर्म है कि किसी तरफ से कुर्द बागियों की कोई गोली आके आपका सफाया फेर सकती है। अभी हम चेक पोस्ट पर खड़े थे कि बस के अमले में से एक फ़र्द ने मुझसे राब्ता कायम किया। ज़रा ये सुनने की बात है कि बस के अमले में से एक फ़र्द ने मुझसे राब्ता कायम किया और मुझसे किराया मांगने लगा। बाकी मैं आपको 41st किस्त में सुनाता हूँ किस्सा।